पानी प्रोवाइड करने लई वाटर कैनन चलाते ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾ ਦੋ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਤੋਂ ਤੇ ਮਾਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਪੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੀਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਓ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾ ਦੋ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਤੋਂ ਤੇ ਮਾਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਪੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਝੂਠ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ। ਤੇ ਵੂਮਨ ਆਬਜੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲਈ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਰਜਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਾਪ ਭਰਾ ਦੀ ਗਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫੇਕ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਡੋ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਪ ਭਰਾ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਜਿਨਿਟੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਵਾਈਟ ਸ਼ੀਟ ਉੱਤੇ ਜੇ ਲਾਲ ਸਟੇਨ ਪਊਗਾ ਫਰਸਟ ਨਾਈਟ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਸ ਕਲਰਫੁਲ ਜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਨੇ, ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੇ, ਮੰਨੋ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਮਿੰਗ, ਬੋਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਭਰ ਕੇ ਬੋਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ। ਮੋਟੀ ਭੈਂਸ ਸੂਅਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨਾਲ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਦੇਣ ਲਈ। ਬਾਕੀ weight gain ਸਪਲੀਮੈਂਟ, weight loss ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਤਿੱਲੀ ਲੱਕੜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 36 24 36 ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਫੁੱਟ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਜ਼ੀਕ ਬਿਲਟ ਅਪ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਕਲਰ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਲਾ ਹਬਸ਼ੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸੁਣਨ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵਾਈਟਨੈਸ ਕਰੀਮ, ਫੇਅਰਨੈਸ ਕਰੀਮ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਲਵਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਲੋ ਐਂਡ ਲਵਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ मैं झूठ अपने दुपट्टे वांगू बोलती हूँ सफेद। अब तो 9 नवंबर भी खत्म हो गया, अब तो खड़े हो जाओ किसानों के साथ। तो प्रोटेस्ट कर रहा किसान एक खालिस्तानी है क्योंकि वो बिना किसी को कोई हानि पहुंचाए शांति से प्रदर्शन कर रहा है। और उसकी हिम्मत कैसे हो गई पुलिस वाले को कुछ खाना खिलाने की, जबकि पुलिस वाली के आईटी सेल के एडिटेड वीडियो में सिर्फ उसके मिस हुआ डंडा, मारा भी नहीं। इसी तरीके से जिस तरीके से मिनिमम सपोर्ट प्राइस एग्रीकल्चर बिल में मिस हुआ है, एमएसपी हटाने की बातें कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों के हिसाब से हमारे फूड ग्रेन्स ओवरलोड हो रखे हैं, हमारे गोडाउन्स में भरपूर सब कुछ सामान है और हम लोगों को इन किसानों पे चल रही वाटर कैनन्स को उसी तरीके से नजरें हटा लेनी चाहिए जिस तरीके से इन लोगों ने एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में से वीट, पल्सेस, ऑयल सीड, टमेटो, पोटेटोज इन सबको हटा दिया। और भाई टीयर गैस की तो जरूरत भी ना थी। हर बात पे प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं, जो दलाली बढ़ जाएगी क्योंकि ये लोग स्टोरेज नहीं अपने पास रख सकते और इन लोगों को दलालों को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, प्राइवेट लोगों को ये खुद नहीं बेच सकते। उसको देख के वैसे ही ना आंखों से आंसू आ ही जाएंगे। तुम लोग को जरूरत नहीं है कुछ स्पेशल उसके लिए काम करने के लिए। तो क्या हो गया भाई, भक्ति में ही शक्ति है, करो हैशटैग बॉयकॉट फूड ट्रेंड। और 3 टाइम का खाना ही तो देते हैं किसान, छोड़ दो खाना खाना, ज्यादा से ज्यादा मौत आ जाएगी और तो कुछ होगा नहीं। तो अभी भी जो कह रहे हैं ना कि भाई साहब फार्मर्स गलत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लॉज बिल्कुल सही है, दफा हो जाओ और हार्पिक्स अपना दिमाग। आज है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डे, तो हम एक काम करते हैं, हम फार्मर्स का रास्ता रोकते हैं और उनसे उनका राइट टू पीसफुली प्रोटेस्ट एंड एजिटेशन छीन लेते हैं। बड़ा मजा आ गया। और लव जिहाद कुछ एक कानून जगह पे लागू करके हम कॉन्स्टिट्यूशन की तौहीन करते हैं। तुमको जिंदगी में लव मिल रहा है, मेरे साथ तो तौहीन मजाक ही हो रहा है, सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है सिर्फ यहाँ पे। और भाई नेशनलिज्म, फ्रेटर्निटी, ये सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, इन सब जैसे शब्दों को ना हम अलग ही मीनिंग में ले चलते हैं। जरूरत नहीं है इनके असली मीनिंग की पहचान करने की। और ओपिनियंस, चॉइस और फ्रीडम, इनको तो भूल ही जाते हैं। ये सारे आपस में संगठन बना के सामूहिक रो रहे होंगे कहीं कोने में बैठ के और गा रहे होंगे खो गए हमका। और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन वो तो हमको पीटने के लिए बनाई हुई है, तभी तो उनको डंडे और बंदूक दी हुई है, वरना फूल पत्तियां देते। जितनी कांस्टेंट यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं होती, उससे ज्यादा कांस्टेंट पुलिस ब्रुटैलिटी है इस देश में। कर लो बात।
और भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना मजाक खुद बनवाया हुआ है। माना ग्रुप प्रोजेक्ट है, तुम सबको कम्युलेटिव होकर डिसीजन लेना है, तो जो ढंग से लेता है उसको करने दो, क्यों सबको बीच में आना, खिचड़ी बना के दे दिया गलत डिसीजन। मतलब ये कौन सी बात है कि तुम्हें पसंद नहीं है तो मत करो। एक्सक्यूज में, कहना क्या चाहते तुम? नहीं मतलब ये एकदम से जज्बात बदल दिए, अल्फाज बदल दिए, सब बदल दिया, मेरे को छुट्टी दे दो, क्या है? और 70 साल से जो भी तुम चल रहा है उसका तुम ठीठरा फोड़ रहे हो कांग्रेस के सर पे। नेहरू जी तुम्हारा कांस्टेंट प्यार है, तुम्हें हर बात पे उनकी याद आ जाती है, लेकिन उनसे ज्यादा 6 साल में तुम लोग मीम मटेरियल दे चुके हो हम लोगों को। भगवान से डर लो थोड़ा। हाँ भक्त, अचीवमेंट अनलॉक्ड। सर्दियों में टॉयलेट सीट पर बैठने से ज्यादा मुश्किल इस देश में माइनॉरिटीज का जीना कर रखा है। अब तुम लोग बोलोगे कि मैं बाथरूम को बीच में क्यों ला रही हूँ, तो लव जिहाद के कानून और सेंसरशिप के नाम पे भी तो सरकार हग ही रही है। तो मतलब क्योंकि मैं इस चीज के बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई मेरे पास लॉ नहीं है, तो मैं अपनी घटिया मेंटालिटी बदलने की जगह अगली असेंबली में इसके अगेंस्ट लॉ ही पास करवा देता हूँ। क्योंकि सरकार देश थोड़ी चल रही है, यहाँ पे मजाक चल रहा है और यहाँ कानून नहीं बन रहे, यहाँ पे चूतिया बनाया जा रहा है हमको सेंसरशिप और इसके नाम पे, लव जिहाद के नाम पे। तो एक हिंदू लड़का अगर मुस्लिम लड़की से नहीं सॉरी मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करे तो वो लव जिहाद हो गया। तो हिंदू मुस्लिम शादी करे तो दिक्कत, मुस्लिम मुस्लिम शादी करे तो दिक्कत, हिंदू हिंदू शादी करे तो दिक्कत, लड़का लड़की को किस करे तो दिक्कत, लड़की लड़की को किस करे तो दिक्कत, लड़का लड़के को किस करे तो दिक्कत। हर चीज पे सेंसरशिप लगा रखी है। इसलिए आज हम लोगों को सेक्स एजुकेशन के नाम पे ना सिर्फ बैंगन और आलू पता है, और वेट के नाम पे मेरी आंखें वेट हो रही हैं ये सब सुन के और देख के। तो भाई मुझे ये बताओ, अगर इतने ही शरीफ और तुमको लगता है कि हमारा कल्चर ऐसा सा है, तो तुमको मैया की गोद में तुम्हारी मोर छोड़ के गया था है? और अगर तुम लोग इतने शरीफ हो तो ये मेरे रीलन आदिरा और हरपुनीत के डीएम्स और इसमें क्या नाम कमेंट सेक्शन में हाउ द हेल आर यू टेलिंग अस 25 डिफरेंट वेज टू फक मी अस एंड आवर फैमिलीज। तो एक ध्यान से बात को गांठ मार लो। 6 अलग अलग डेबिट कार्ड से नेटफ्लिक्स जिहाद करने वालों, अगर आज कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया होता ना और तुम उसके नीचे होते तो वो स्वयं तुमको उसके नीचे दबा देते। आदाब मियां, मैं कह रही थी कि इन दो में से एक उंगली हमारे देश के न्याय अधिकारियों के लिए है, और समय ना बर्बाद करते हुए बता दूं ये वाली, क्योंकि ये लोग एक नंबर के 2 मुंहे हैं। माना कानून अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा कि सही और गलत ही नहीं समझ पा रहे हो, तो कानून के हाथ भी लंबे होते हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए अपराधियों को पकड़ने के लिए, लेकिन सिर्फ आंखों पे पट्टी बांध के अपना अंधापन ही दिखाना है। न्याय तो सबको एक जैसा दिल नहीं रहा है। तो आप ये बताइए कि अगर आपको कुणाल कामरा का ट्वीट पसंद नहीं आया था तो आपने पढ़ा क्यों? ना आप पढ़ते, ना आपको समझ आता, ना आप ऑफेंड होते। तो अब आप मुझे बताओ कि हम आपका नशा उतारें कि नजर, क्योंकि आप भंड भी लग रहे हैं लेकिन बीमार भी लग रहे हैं। कुणाल कामरा को बात बात पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दे रहे हैं और अर्नब गोस्वामी जैसे फटे डीजे के स्पीकर को बेल। तो आप हमें ये बताइए, आप हमसे चाहते क्या हैं? क्योंकि आपको देख के कभी कभी ऐसा लगता है अपनी खुद की बातों से पलट के आप भी तो कंटेम्प्ट ऑफ ह्यूमन कर रहे हैं, अपनी बात पे टिकते ही नहीं हो। और ये नीली चिड़िया वाला ऐप और ये गुलाबी डब्बे वाला ऐप इतना भयंकर मजाक करते हैं हमारे साथ, कहते हैं कि तुम अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हो, लेकिन अगर तुम उनके खिलाफ आवाज उठा दो तो नीली चिड़िया तुम्हारा अकाउंट बंद करती है और गुलाबी डब्बा तुम्हारे को शैडो बैन। तो एक काम कीजिए ना, आप लोग मजाक कर लीजिए, देश में डाइसेंट तो हम बाद में कर लेंगे। अमा यार तुम भी मजाक करते हो कभी हमारे साथ। तो नया रेप ट्रेंड हो रहा है इंस्टा पे, एक ही हो रहा है, बाकी सब हम भूल गए, चलो कोई बात नहीं, इसी पे बतिया लेते हैं। तो नीली चिड़िया वाले उस ऐप पे किसी ने लिखा था कि दिवाली पे पटाखा समझ के जलाए दिए। काश बाबा साहेब ने मनुस्मृति के साथ तुम्हारी घटिया सोच फूंक डाल दी होती, हमको कोई दुख ना होता। उसके बाद एक औरत लिखती है कि जब तुम्हें पता है ऐसा होना था, विवाह कर लेती, कम से कम इसी से तुम बच जाती। अरे छुरा मारो हमारी छाती में, मारो हमारी छाती में छुरा है, हम बर्बाद हो गए। कहां से आते हैं ये लोग, हम जी भी क्यों रहे हैं ऐसे लोगों के साथ। फिर एक महापुरुष लिच्चड़ प्रजाति के सारी सीमाएं पार करते हुए लिखते हैं कि I hope कि before exhausting the resources, the person utilized the resources optimally। तुम लोगन को रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी का स्पेलिंग पता है, जो हमको तुम माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी यहाँ समझा हो हैं? अरे तो गुड मॉर्निंग लेडीज, ऑन टुडेज एपिसोड ऑफ एक औरत क्या है, कौन भी नहीं, क्या हम एक कमोडिटी है, एक एसेट, लायबिलिटी है। तो भाई साहब इससे ठीक तुम स्टैच्यू ऑफ इनजस्टिस, स्टैच्यू ऑफ इनइक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ मिसोजिनी, स्टैच्यू ऑफ स्टूपिडिटी बनवा लेते देश में। कम से कम जो चीज चल रही है वही दिख जाती, बिना मतलब के बाकी सब बनवा रहे हो। अगली बार कोई तुमसे पूछे ना कि क्या तुम फेमिनिस्ट हो, तो तुम ये जरूर सोचना कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां एक आदमी अपने प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को बाहर निकाल के पब्लिकली यूरिनेट कर सके है, लेकिन एक औरत अपने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से ब्रेस्ट फीड नहीं कर सके है। क्योंकि शिव 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 तौबा तौबा, मैगजीन में वो सब देखना ठीक है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हुई बिल्कुल गलत हो रही है।
अगली बार कोई तुमसे पूछे कि क्या तुम एक फेमिनिस्ट हो, तो उसको ये जरूर बता देना कि हम औरतों को शुरुआत से अभी तक एक ही चीज सुनने को मिलती है, कोई तुम्हें छेड़ दे तो उससे दूर हो जाना, कोई तुम्हें कुछ कह दे तो उसको इग्नोर करके आगे चल देना, कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है थोड़ा तेज चलना, उससे बच के निकलो, कोई तुम्हें गलत हाथ लगा दे तो उसको कुछ कहना मत, वहां से निकल लो क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है। अरे रेप होने से बचाना है, तुम्हारी गलती होगी, तुम पे ब्लेम आएगा, तुम्हारा चरित्र गंदा है, तुम ये हो, उन लोगों की गलती नहीं मानी जाएगी, इसमें उनको नहीं टोका जाएगा, उनको नहीं कुछ कहेंगे, तुम लोगों को बचना है, खुद को बचा के रखो, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, यही तो करना है। और अगली बार कोई तुमसे पूछे क्या तुम फेमिनिस्ट हो, तो उसको ये जरूर बताना कि एक मर्द के साथ अगर कुछ होता है ना, तो हम ये कह के उस चीज को हाईलाइट करते हैं कि मर्द के साथ हुआ है, औरत के साथ हुआ होता तो तुम शेयर करते, वहां पे भी कंपैरिजन आ जाता है। लेकिन अगर औरत के साथ कुछ होता है तो उसको हम धर्म और जाति में बिगाड़ देते हैं सारा को, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें प्रॉपर पॉलिटिकल घटिया प्रोपेगेंडा अपना घुसाना है ना। बिल्कुल, क्योंकि मनीषा वाल्मीकि एक लोअर कास्ट की होने से पहले एक औरत थी, निकिता तोमर एक हिंदू लड़की जिसको एक मुसलमान लड़के ने गोली मारी, वो भी एक औरत थी। एक लड़की गुलनाज मुस्लिम थी जिसको एक हिंदू लड़के ने रेप करने के बाद जिंदा जला दिया, वो भी एक औरत थी, और औरत होने से पहले ये तीनों एक इंसान थी। लेकिन हम इसके बारे में बात थोड़ी करेंगे, क्योंकि एक औरत के साथ रेप होना तो हमारे देश में बहुत ही नॉर्मल सी बात हो गई है। ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, चलिए ठीक है, देखते रहिए, कोई बात नहीं। तो अगली बार ये बोलने से पहले कि हम फेमिनिस्ट नहीं हैं, फेमिनिज्म का मतलब पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा गुलाबो इतनी देर से क्या भौंक रही थी। तो हम आप सबसे विदा लेते हैं, गुलाबो घूंघट वाली का जी प्रणाम। आप अर्नब गोस्वामी को तो बाहर ले आए, लेकिन देश को रिसेशन में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे क्रश से भी ज्यादा ना वाहियात रीजन दिया है। इट इज नॉट यू बट मी बोल देते ना, वो भी सेंस बन जाती। लेकिन भाई साहब स्वेटर सिलवाने गई लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि 4 महीने से प्रेग्नेंट सफूरा जरगार, एक बीमार और बुजुर्ग एक्टिविस्ट वरवरा राव, एक बुजुर्ग आदमी जो सिपर के लिए लड़ रहा है जेल में, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन इन जनाब को 7 दिन में 5-6 सुनवाइयों में बेल मिल गई। भाई साहब जर्नलिस्ट लाइक सुधा भारद्वाज, मयंक नौलखा एंड एक्टिविस्ट लाइक उमर खालिद और अर्नब गोस्वामी और कपिल मिश्रा में पता है क्या सिमिलैरिटी है? चुतियाब की। ये दोनों करते हैं और उन तीनों जैसे लोग सह रहे हैं। फिर कोई कह रहा है कि नेशनल टेलीविजन पे पोर्न दिखा दो, जिसको देखनी है वो देखेगा, जिसको नहीं देखनी वो नहीं देखेगा। अरे जो ये नंगा नाच कर रहे हैं जर्नलिज्म का, इसकी बात भी कर लो। अकॉर्डिंग टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इन लोगों को कुणाल कामरा की ट्वीट्स नहीं पढ़नी चाहिए, इन लोगों को उमर खालिद की स्पीच नहीं सुननी चाहिए, इन लोगों को प्रोटेस्ट में जाके डाइसेंट के गाने और नारों को नहीं सुनना चाहिए। जो चीज नहीं पसंद उसको इग्नोर कर दो। पेट्रियार्कल सोसाइटी में औरत की आवाज थोड़ी है जो नजरअंदाज कर दोगे। और इस आदमी को नजरअंदाज करूं भी तो कैसे करूं? ये अपनी वोकल कॉर्ड्स की चरण सीमा पर चिल्लाता है, कैसे ना सुनूं मैं इसको? लुधियाने में बैठा बैठा लंका का कुंभकर्ण उठा दे। लेकिन हमारे मामा जी की शादी है, डेमोक्रेसी थोड़ी है, जो मन करेगा वो करेंगे हम लोग। सो नायक का सुसाइड इज नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर। सो इट वॉज टेक्निकली फ्री स्पीच ओवर राइट टू लाइफ। नाउ इट इज नॉट इवन अबाउट इफ यू आर राइट और इफ यू आर रॉन्ग, इट्स अबाउट हु साइड आर यू ऑन और विच साइड आर यू इंक्लाइन टुवर्ड्स। अगर तुम उनकी साइड हो, अगर तुम उनकी तरफ इंक्लाइंड हो, तो तुम बहुत सही हो, तुम बिल्कुल सही हो। तो दे विल डू एवरीथिंग दैट दे कैन टू प्रोटेक्ट यू। बट इफ यू आर अगेंस्ट देम, योर ओपिनियंस आर ट्रैश, यू आर बुलशिट, तुम रंडी हो, तुम चुतिया हो, तुम ये हो, तुम वो हो, एंड दे विल डू एवरीथिंग टू कर्ब दैट वॉइस ऑफ डाइसेंट कमिंग फ्रॉम यू। सो क्या हुआ अर्बन? चुप क्यों हो अर्बन? भीगी बिल्ली बन के क्यों बैठे हो? जब मारा तो मुंबई पुलिस ने तुम्हें कुत्तों की तरह था, तुम कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे हो? आज मेरे साथ पूछता है प्यारे देशवासियों, वैसे तो देश क्या हुआ अर्बन? प्यारे देशवासियों, वैसे तो देश की अर्थव्यवस्था हमारे नेताओं की भी कैरेक्टर से